پر رہتے ہیں اور گناہ نے اپنے پنجے گہرے طور پر یہاں پر گاڑے ہوئے ہیں. اور اگر ایک شخص یہ کہے کہ میری زندگی میں کوئی غم نہیں, کوئی دکھ نہیں, کوئی مسائل نہیں, تو وہ جھوٹ بولے گا. ہم میں سے ہر ایک ان مسائل, پریشانیوں, دکھوں کا شکار ہے, لیکن خدا کی تعریف ہو کہ وہ اپنی برکات میں سے ہمیں ایک اور برکت دیتا ہے, اور کلام خدا کی ہدایت بھی ہے. اور خدا کا بندہ پالوس رسول فرماتا ہے, وہ اپنی کلیسیا کو کہتا ہے کہ میں تم سے کہتا ہوں کیا کرو, خوش رہو, اور پھر کہتا ہوں کیا کرو, خوش رہو, خوش رہو. اور پریز گاڈ, ہم سب آج خوش ہیں. کیوں خوش ہیں؟ خدا نے ہمیں زندگی کی بہت سارے ریزنز ہیں ہمارے پاس خوش ہونے کے. کئی دفعہ ہمارے پاس ریزن نہیں ہوتے اداس ہونے کے, اور ہمارے منہ لٹکے رہتے ہیں, لیکن خوش ہونے کے بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں. میں نے اپنی زندگی سے بہت سارے اسباق سیکھے, اور ایک سبق میں نے یہ سیکھا کہ زندگی خدا کی وہ نعمت ہے جس میں ہمارے پاس سیکنڈ چانس نہیں ہے. بھائی ارشد کے لیے خوش ہیں, اور آپ کو ہم ویلکم کہتے ہیں. اس کے لیے ہمارے پاس سیکنڈ چانس نہیں ہے کہ اگر ہم اس کو ابھی رو کے گزار لیں مسز کلیم, تو کیا دوبارہ چانس ہوگا کہ ہنس کے گزار لیں؟ تو بیٹر کیا ہے, رو کے گزارنے سے اچھا ہے ہنس کے گزار لیں, اور لمبے چہرے کرنے سے اچھا ہے اسمائلی فیس, تاکہ دیر تک ہم جوان نظر آئیں, چھریاں نہ پڑیں, اور ہمارے دل شادمان ہوں. خدا کا شکر کرتے ہیں آپ سب کی سلامتی کے لیے, اور آج صبح یہاں پر آپ کی موجود ہیں. آج آپ یہاں پر اس فلیکس کو دیکھ سکتے ہیں جس پر لکھا ہے ویمنس منسٹری ایمفیسس ڈے. میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ چرچ کا جو کیلنڈر ہے, جو جنرل کانفرنس جو ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے امریکہ میں, وہاں سے یہ کیلنڈر نکلتا ہے, اور وہاں پر پھر ہماری آگے جتنی ڈویژنس ہیں, ڈویژن سے ہوتے ہوئے پھر ہمارے جتنے سیکشنز ہیں, سیکشن سے ہوتے ہوئے پھر جب یہ لوکل چرچز آ جاتے ہیں, تو یہ کیلنڈر میں ویمنس منسٹری ایمفیسس ڈے جو ہے ہر سال جون کا دوسرا سبت ہوتا ہے. اور بیسیکلی چرچ, کیونکہ یاد رکھیے کہ ہم بڑی اچھی طرح یہ جانتے ہیں, اور کسی شاعر نے بھی بڑا خوبصورت ایک شعر کہا تھا, وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. اور خدا نے بھی, کیونکہ پہلے خدا نے یہ انیشیٹو لیا, جب آدم کو بنایا تو خدا نے اپنی ساری تخلیق پر نظر کی, گو کہ باغ عدن میں طرح طرح کے پھل, پھول, درخت, ہری بھری گھاس, رنگ برنگے پرندے, جانور, سب کچھ تھا. آدم کو بھی بنا دیا, لیکن ابھی پھر بھی کچھ پھیکا پھیکا سا تھا, رنگ نکھر کر نہیں آ رہے تھے, رنگ پھیکے تھے. خدا نے پاک اس سے اور بیٹے سے کہا آؤ ہم کیا کریں, ایک عورت بھی بنا دیں, ایک مددگار بھی بنا دیں. مرد کو تو انسان کو تو بنا کے, اور انسان میں آدم اور ہوا دونوں شامل تھے. بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں شاید آدم پہلے بنایا اور ہوا بعد میں, ایسا نہیں ہے. سیم ڈے خدا نے ان کو بنایا. جب آدم کو بنایا تو بالکل جو کائنات کی تصویر تھی وہ ادھوری تھی, تو پھر خدا نے کہا کہ نہیں, ایک مددگار بھی بنانا چاہیے, اور وہ عورت تھی. اور چرچ, سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ چرچ کی جو ڈاکٹرنس ہے وہ بائبل مقدس پر ٹوٹلی بیسڈ کرتی ہے. اسی لیے جب چرچ کے اندر مختلف ڈپارٹمنٹ بنائے جاتے ہیں, تو ان ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ویمنس منسٹری کا ہے, پھر ایک ڈپارٹمنٹ چلڈرن منسٹری کا ہے, اس کے ساتھ پھر آگے فرق سیم اسکول ڈپارٹمنٹ, پھر IEL NTR ڈپارٹمنٹ, فیملی منسٹری ڈپارٹمنٹ, اور پبلشنگ ڈپارٹمنٹ, ہیلتھ منسٹریز, اور یوتھ ڈپارٹمنٹ. بہت سارے جو ہے وہ خدمات کے شعبے ہیں. اور جنرل کانفرنس سے لے کر لوکل چرچز کے اندر جو ہے چرچ بہت زیادہ سسٹمیٹکلی کام کرتا ہے. وہاں پر جہاں پر پاسبانوں کی خدمت ہے, ایلڈرز ڈیکن کی خدمت ہے, وہاں پر ہر چرچ کے اندر, لوکل چرچ کے اندر کوآرڈینیٹرز بنائے جاتے ہیں, ڈپارٹمنٹل کوآرڈینیٹرز ہوتے ہیں,
ہمیں خدا نے اپنی خدمت کے لیے ہمیں دیے ہیں، ہم سب مل کر ان کو کیا کریں؟ استعمال کریں، کیونکہ نجات ہم سب کے لیے ہے۔ آمین۔ کوئی کہہ سکتا ہے نجات میرے لیے نہیں ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے تو ووٹ کے باہر جا سکتا ہے؟ نہیں ہے۔ پریز گاڈ، ہم سب کے لیے نجات ہے، خواہ ہم مرد ہیں، عورت ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، پڑھے لکھے، ان پڑھ ہیں، کسی بلا رنگ و نسل، بلا تفریق کے۔ سسٹر جی، خدا کا بیٹا اس دنیا میں کس کے لیے آیا؟ تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ سب کے لیے، پوری دنیا کے لیے۔ اور کتنا بیلنس چرچ کے اندر ہے، ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہم ایک آرگنائز کلیسیا کا حصہ ہیں۔ پریز گاڈ، خدا کی تعریف ہو۔ اور ہم سب اپنے اپنے طور پر چرچ میں بہت ویلیویبل ہیں۔ بھائی صاحب نے جیسے مینشن کیا کہ چرچ کا کام کسی ایک فرد کا نہیں ہے بلکہ ٹوٹل ممبر انوالومنٹ ہوتی ہے چرچ کے اندر۔ اور آج ہم شکر گزار ہیں مسز لی کا، مسز کم مون لی جو ہماری پاکستان یونین کی ویمنس منسٹری کی ڈائریکٹر ہیں، اور وہ وقتاً فوقتاً پاکستان کے اندر ہمارے لوکل چرچز کے اندر بہت سارے پروگرام جو ہے وہ آرگنائز کرتی ہیں تاکہ خواتین زیادہ سے زیادہ اپنی ایبلٹیز کو، اپنے ٹیلنٹس کو جو خدا نے اسے دیے ہیں وہ جان سکیں، پہچان سکیں، اور اپنی دنیاوی خاندانی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ وہ چرچ کے اندر اپنی خدمات کو بھی جاری اور ساری رکھیں۔ ہم شکر گزار ہیں مسز لی کے جنہوں نے اپنے ڈپارٹمنٹ، ویمن منسٹری ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اس سال، اور یہ پہلی دفعہ ہے میرے خیال میں پاکستان یونین کی سطح پر، کہ انہوں نے اس سال پورے پاکستان میں جتنے ہمارے لوکل چرچز ہیں وہاں پر یونین میں جو ہماری لیڈرز کام کر رہے ہیں، اور پھر پاکستان یونین میں، اور پھر لوکل چرچز کے اندر انہوں نے تقریباً 3 to 5 لیڈیز کو چنا، کیونکہ وہ بیسیکلی ان کے پاس وہ نام تھے، وہ خواتین جنہوں نے لیڈرشپ ٹریننگ جو ہے وہ کمپلیٹ کر رہی ہیں۔ اور ابھی ہمارے سسٹر شکیلا کتنے لیول ہو گئے ہیں؟ 3 لیول ہو گئے ہیں، اور 1 لیول ہمارا لیفٹ ہے، اور آنے والے سال میں 4 لیول ہمارے ویمن منسٹری کے جو لیڈرشپ سرٹیفکیشن ٹریننگ ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہمارے چرچ کے اندر سے ہماری کچھ ایسی بہنیں جو اس ٹریننگ کا حصہ ہیں، کیونکہ ان میں سے کچھ بہنوں نے لیول 1، 2 اور 3 کیا ہے، لیکن کچھ بہنوں نے لیول 1 اور پھر جو ہے وہ 2 میں تھا، پھر آگے انہوں نے لیول 3 کیا ہے، لیکن اگلے سال پھر وہ 3 اور 4 دونوں لیول کریں گے۔ اس لیے آج ہم جو مسز لی نے جن خواتین کے نام، کیونکہ یونین کی طرف سے ان کے پاس ان کے نام ہیں، انہوں نے ہمیں لسٹ بھیجی تھی کہ اس سال ہم ان لیڈیز کو مزام چرچ میں ریکگنائز کر رہے ہیں جنہوں نے 3 لیولز کمپلیٹ کر لیے ہیں۔ اور میں بڑی خوش ہوئی جب میں نے ان میں جو ہے وہ سارا کا نام دیکھا، پھر ان میں جو ہے وہ ہمارے پاس باجی ریٹا نے ہی ٹریننگ کو کر رہی ہیں، اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس نام تھا سسٹر بشرا کا، اور پھر ہمارے پاس جو ہے وہ جو سیب اسکول میں انہوں نے کہا تھا جو لیڈرز جو آپ کو چرچ کے اندر آپ کے کام کر رہے ہیں ان میں سسٹر شکیلا کا نام بھی تھا، اور اسی لیے یہ جو لیڈیز ہیں ان کو ریکگنائز کیا یونین نے، ہم آپ کو کنگریچولیشنز کہتے ہیں۔ اور وہ بہنیں جو سمجھ رہی ہیں کہ مجھے بھی اس کا حصہ بننا ہے تاکہ اگلے سال یونین کی طرف سے میرے لیے بھی گفٹ اور سرٹیفکیٹ آئے، تو پلیز بی ایکٹیو ان دا چرچ اینڈ ٹیک پارٹ ان دا ٹریننگ، تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ سیکھیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے ہنر کو، اپنی خوبیوں کو خدا کے لیے استعمال کریں۔ پھر ہم شکر گزار ہیں کہ سیکشن ناردرن سیکشن میں یونین نے ریکگنائز کیا ہے، ان کی سروسز کو ریکگنائز کیا، سسٹر شکیلا کی کنگریچولیشن شکیلا، اور سسٹر شاہدہ ایڈمن کی، کیونکہ وہ سیکشن لیڈرز کی وائفز ہوتے ہوئے مختلف چرچز کے اندر اپنی خدمات کو دے رہے ہیں۔ پاکستان یونین نے ان کی خدمات کو سراہا ہے، اور میں دل سے شکر گزار ہوں کہ پاکستان یونین نے یونین میں سے 2 لیڈیز کو چنا جو کہ اپنی خدمات وقتاً فوقتاً چرچ کے لیے دیتے رہتے ہیں، مختلف سیمینارز کے اندر، مختلف ٹریننگز کے اندر خداوند ہمیں استعمال کرتا ہے، اور یونین نے میرا نام
जो है वो रिकग्नाइज किया और फिर मिसेस रूथ आशिर का नाम रिकग्नाइज किया है और हम इस सारे फजल के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। तो आइए हम खुदा की शुक्रगुजारी करें। और हमेशा मैंने लास्ट टाइम के लिए कहा था कि एप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी होती है। अपने घर के अंदर जब आपके बच्चे को अच्छा काम करते हैं उन्हें अप्रिशिएट करें, उनको थैंक यू कहें। ये मत सोचे कि वो ये तो मुझसे छोटा है, ये तो मेरा बेटा है, मैं इसका बाप हूँ, ये मेरा बाप थोड़ी है, मैं इसको थैंक यू कहूँ। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत छोटा सा बच्चा भी आपके लिए कुछ अच्छा करता है तो आप उसे जरूर थैंक यू करें, उसको अप्रिशिएट करें। आपके इर्द गिर्द जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, अगर आपसे कोई छोटा वर्कर है, वो आपके लिए कुछ करता है, कोई दरवाज़ा खोलता है, वो सफाई करने वाला है, वो आपको पानी पिलाने वाला है, वो आपके कोई और काम करने वाला है, तो हमेशा उनको अप्रिशिएट करें, उनको थैंक यू करें। और फिर अपने घर के अंदर अपनी वाइफ को भी थैंक यू करें, उससे आपकी शान बढ़ेगी, आपकी वाइफ की नज़र में आपकी इज्जत बढ़ेगी, कम नहीं होगी। उसको हमेशा जो कुछ वो आपके लिए करती है रिकग्नाइज करें। रिकग्निशन बहुत ज़रूरी है, इसीलिए वुमेन्स मिनिस्ट्री एम्फेसिस डे मनाया जाता है, ताकि हम एम्फसाइज करें उन बहनों को, उन बेटियों को जो चर्च के अंदर अपनी खिदमत करती हैं, उनको सराहें, उनको अप्रिशिएट करें। और आज हम देखेंगे बाइबल मुकद्दस के अंदर आज का जो इस साल का जो उन्वान है वो बहुत खूबसूरत है। कोई उन्वान पढ़ सकता है? थीम क्या है हमारा? कोई भी बंदा, बच्ची, नौजवान बेटी खड़ी होकर पढ़े, उसको भी नाम दिया जाएगा। नौजवान बेटा भी पढ़ सकता है, तो जल्दी हाथ खड़ा करेगा। 1 2 3। ओह एरिका, वेरी गुड एरिका, कम हियर, आगे आइए, शाबाश। ले जी, अभी एरिका भी नाम लेने वाली है, बाद में एरिका आइसक्रीम खिलाएगी मामा को। ठीक है एरिका, क्या थीम है हमारा इस साल का? इस साल का जो थीम है वो है द गॉड हू सीज यू, मतलब कि वो खुदा जो आपके दिलों को भी देखता है और आपके ऊपर नजर कर्म भी करता है। आमेन, क्लैपिंग करें जी। खूबसूरत सा टॉपिक था आज का जो हमारा थीम है। एरिका, दिस इज फॉर यू, गॉड ब्लेस यू। ओके जी, क्या थीम है हमारा? द गॉड हू सी यू, खुदावंद जो आप पर नजर करता है। क्या थीम है हमारा? सब बोलेंगे खुदावंद। आपने कहना है खुदावंद जो मुझ पर नजर करता है, अपने आप की तरफ आपने इशारा भी करना है। सब बोलेंगे खुदावंद जो मुझ पर नजर करता है। और आज हम बाइबल मुकद्दस के अंदर ऐसी 3 लेडीज को, ऐसे 3 बाइबल में खवातीन के कैरेक्टर्स को देखेंगे और वो कैरेक्टर्स हमारे साथ हैं। मैं चाहूंगी कि हमारा पहला कैरेक्टर है शकीला, आप सामने आए और आप हमें बताएं अपने बारे में। हैप्पी सैबथ। आप सामने आके बैठे हैं, आप सामने। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस पेपर पर हादसा लिखा हुआ है। इट मीन्स कि ये कहानी है बाइबल की जो हमें 16 बाब उसके आयत नंबर 1 से 21 तक जो है वो मिलती है। मैं हाजरा हूँ और मेरी कहानी कहाँ पर आपको मिलती है? पैदाइश 16 बाब और उसकी आयत नंबर 1 से लेकर 21 तक। और खुदावन जो है वो मुझे देखता है। खुदावन क्या करता है? आमीन। जी, पहली कहानी हम किसकी देखेंगे? हाजरा। और हाजरा ने क्या कहा कि खुदावन मुझे देखता है। जब हम कलाम खुदा में से खुदा के मुकद्दस कलाम को खोलते हैं और जब हम खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं, और पैदाइश मेरे साथ जरा जल्दी से खोलिएगा उसका 15वां बाब, और हम वहाँ पर हाजरा की कहानी को देखते हैं कि हाजरा बेसिकली थी कौन। जी आइए हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से जी पैदाइश उसका 16वां बाब देखेंगे। और इब्राहिम की बीवी सारी के कोई औलाद ना हुई, उसकी एक मिस्री लौंडी थी जिसका नाम हाजरा था। हाजरा के बारे में पहली बात हम सबको याद रखनी है कि वो क्या थी, कौम, किस कौम से ताल्लुक रखती थी? मिस्र से। वो क्या थी? मिस्री थी। और वो उसका औहदा क्या था? वो एक लौंडी थी। लौंडी मीन वर्कर थी, एम्प्लॉय थी, उस घर में वो काम करती थी और
छुपा देता। अब ये मालिक पर डिपेंड करता था कि वो अपने मुलाजिम को, अपने गुलाम या अपनी लौंडी को कैसे वो ट्रीट करता है। और सारा की जो लौंडी थी वो थी हाजरा। और हम सब ये जानते हैं कि खुदा ने इब्राहिम को जब उसके लोगों से निकाला और उसके बाद फिर खुदा ने इब्राहिम से एक वादा किया कि मैं तेरी नस्ल को क्या करूंगा, आसमान के सितारों की माने और जमीन के रेत के जर्रों की माने बढ़ाऊंगा। इंतजार करना बहुत मुश्किल होता है भाई, आसान है इंतजार करना कि मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और इब्राहिम इंतजार करता रहा, सारा बी स्ट्रांग। कई दफा खुदा हमें वेट करने के लिए कहता है और इंतजार बढ़ता 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 गया। और शायद कितने साल का इब्राहिम हो गया? 90 साल। हाँ, 100 साल का। 90 साल की तो सारा हो गई थी, लेकिन क्या था, खुदा एक भी नहीं। और फिर क्या किया? अब सारा ने कहा, सारी जिसका नाम बाइबल में आया, फिर उसका नाम सारा हुआ, बहुतों की माँ। और फिर क्या हुआ? उसने कहा अच्छा शायद खुदा भूल गया है क्या, अच्छा चले मैं शायद खुदा के पास बहुत ज्यादा काम है शिला, उसने कहा मैं खुदा की हेल्प करती हूँ। हाँ, कई दफा हम खुदा के बातों को भूल जाते हैं। हम सोचते हैं हमें अपनी अकल पर, अपनी समझ पर रिलाय करना है। हम सोचते हैं शायद हम ज्यादा समझदार हैं, शायद हम खुदा से भी ज्यादा तनाव होते हैं। और इब्राहिम और सारा ने यहाँ पर गलती की। लेकिन बताया ये जाता है क्या हुआ, और सारी ने इब्राहिम से कहा कि देख खुदावंद ने मुझे तो औलाद से महरूम रखा, सो तू मेरी लौंडी के पास जा, शायद उससे मेरा घर आबाद हो। यानी उसने उसको उसके लिए एज अ वाइफ जो है वो मुकर्रर। इब्राहिम सारा से प्यार करता था और उसने उसकी बात को माना। उसने हाजरा से जो है वो उसकी शादी हो गई, निकाह किया, वो उसके पास गया और फिर जो है वो उसमें से खुदा ने हाजरा में से खुदा ने क्या किया, बेटा बख्शा। और इब्राहिम जो है वो सेटिस्फाइड हो गया। उसने कहा शायद खुदा ने इसी लड़के के लिए जो है, इसी औलाद के लिए खुदा ने मेरे साथ वादा किया था, लेकिन वो वादा किया हुआ फर्जंद नहीं था। भाई BMW ऐसा ही है, यस ऐसा ही है। और फिर क्या हुआ, जब हाजरा के बेटा हो गया, हाजरा की वैल्यू बढ़ गई, इब्राहिम का झुकाव भी हाजरा की तरफ हो गया। और यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि फैमिली प्रॉब्लम शुरू हो गए। हम मसीह में खुदा का शुक्र करते हैं कि हम मसीह होते हुए हर मर्द की एक बीवी और हर औरत का जो है वो एक ही शौहर है। लेकिन बहुत सारे अगला घर देखने के लिए आज हमारे भी बहुत सारे क्रिश्चियन इस शौक को चुरा चुके हैं कि एक बीवी के ऊपर फिर वो दूसरी और कई तो तीसरी शादी करने को भी फिरते हैं। और कई की ख्वाहिश होती है कि चले मैं भी सुन्नत रसूल में शामिल हो भी जाऊँ, चौथी भी कारी भी। लेकिन फिर उनके चैलेंजेस, फैमिली प्रॉब्लम्स हम देखते हैं। यहाँ पर हाजरा के साथ भी ऐसा है। जब सारा ने ये देखा कि अब सबका झुकाव, क्योंकि वो साहिब औलाद है, उसकी तरफ है, तो फिर सारा ने एक बहुत सख्त फैसला। उसने इब्राहिम से कहा कि क्या कर इसको घर से निकाल दे। और उसका रवैया हाजरा के साथ इतना बुरा हो गया, हाजरा को मजबूरन स्टेप उठाना पड़ा कि वो अपने बेटे को लेकर वहां से चली गई। जिस रात से वो जा रही थी वो रेगिस्तानी रास्ता था, वो सहरा था, पानी नहीं है, धूप है, सायाबान नहीं है, वीरान और सुनसान जगह है। और वहां पर आइए हम आगे बढ़ते हैं। बहुत खूबसूरत यहाँ पर हम जो है वो उस लौंडी पर जो खुदा का जिस पर हाथ रहा बताया जाता है कि तब सारी, अगर आप छठी आयत को देखें तो वहां पर लिखा है, इब्राहिम ने सारी से कहा कि तेरी लौंडी तेरे हाथ में है, जो तुझे भला दिखाई दे तो उसके साथ कर। तब सारी उस पर सख्ती करने लगी और उसके पास से भाग गई और खुदावंद के फरिश्ता को बियाबान में पानी के चश्मा के पास मिली। और ये वही चश्मा है जो शोर की राह पर है। और उसने उससे कहा
اور خدا نے جب ابراہیم کو چنا، خدا نے ابراہیم کو برکت دی، اور وہ برکت کا سلسلہ جو تھا وہ ابراہیم کی زندگی سے لے کر ابراہیم سے جڑی ہوئی ہر ایک چیز پر ٹھہرا رہا، چاہے اس کے گھر کا مال مویشی تھا، چاہے اس کے گھر کے نوکر چاکر تھے، اور ہاجرہ بھی انہی لونڈیوں میں شمار تھی جو اس کے گھر میں شاید اور بھی بہت ساری لونڈیاں تھیں، لیکن اب ہاجرہ کا سٹیٹس بدل گیا تھا کیونکہ وہ اس میں سے ابراہیم کا بیٹا پیدا ہو گیا۔ اب جو وہ ریگستان میں بیابان کو بھاگی، اور وہاں پر کیا ہوا، خدا کا فرشتہ جو ہے وہ اس کو ملا، کیونکہ خدا کی کیا تھی ہاجرہ پر، خدا کی ہاجرہ پر کیا تھی، ہاجرہ پر خدا کی کیا ہے، نظر ہے، خدا کی نظر تھی ہاجرہ پر۔ اس نے اسے کہا کہ تو کہاں کو آتی ہے اور کدھر کو جاتی ہے؟ اس نے کہا میں اپنی بیوی ساری کے پاس سے بھاگ آئی۔ خداوند کے فرشتہ نے اس سے کہا تو اپنی بیوی کے پاس لوٹ جا اور اپنے آپ کو اس کے قبضہ میں کر دے، اور خداوند کے فرشتہ نے اس سے کہا کہ میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا، یہاں تک کہ کثرت کے سبب سے اس کا شمار نہ ہو سکے گا۔ اور خداوند کے فرشتہ نے اس سے کہا کہ تو حاملہ ہے اور تیرا بیٹا ہوگا، اور اس کا نام کیا رکھنا، اسماعیل رکھنا، اور اس لیے کہ خدا نے تیرا دکھ سن لیا۔ میرے عزیزوں، ہاجرہ کی نظر اس وقت اس ریگستان اور بیابان میں بھی اس کے اوپر خدا کی نظر تھی۔ آج میں اور آپ بھی شاید ہاجرہ کی طرح کے مسئلے میں تو نہ ہو، لیکن ہم بھی اس دنیا میں جو گناہ سے بھرا ریگستان ہے، جو گناہ سے بھرا ہوا بیابان ہے، گناہ بھری جھاڑیوں نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں تاکہ وہ مجھے اور آپ کو اپنا شکار بنائے۔ لیکن یاد رکھیے، ہماری کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی دکھ، کوئی بھی بیماری، کوئی بھی معاشی تنگی خدا سے بڑی نہیں ہے۔ آمین۔ اس لیے خوش ہوئیے، خوشی منائیے، خدا کا شکر کیجئے، کیونکہ آپ پر بھی خدا کی نظر ہے۔ جیسے خدا کی نظر کس پر تھی، اس پر تھی، ہاجرہ پر تھی۔ خدا نے وعدہ کیا، بیٹا بخشا اسماعیل، اور خدا نے اس کو بہت بڑھایا۔ میرے عزیزوں، جب ہم مزید تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو ہم بائبل مقدس میں پرانے عہد نامہ کے اندر 2 ساموئیل، وہاں پر ہم ایک بڑی خوبصورت اور کہانی پاتے ہیں، اور ہمارے ساتھ وہ بائبل کریکٹر موجود ہے۔ میں چاہوں گی کہ رسپا جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئے۔ آج ہم خوش ہیں کہ رسپا ہمارے ساتھ ہیں۔ جی مسیح یسوع میں آپ سب کو میری طرف سے سلام اور ہیپی سیبت۔ میرا نام رسپا ہے اور میری کہانی 2 ساموئیل اس کا 21 باب سے لے کے 10 سے لے کے 14 آیات تک پائی جاتی ہے، اور خداوند مجھے دیکھتا ہے۔ آمین۔ کتنے ہیں جنہوں نے آج سے پہلے رسپا کا نام سنا اور رسپا کی کہانی کو پڑھا ہے؟ کوئی اپنا ہاتھ کھڑا کر سکتا ہے بائبل مقدس کے اندر؟ جی انکل دیتا، شکریہ، آپ نے رسپا کی کہانی کو پڑھا ہے۔ رسپا آپ کو یہ بتاتے چلے کہ رسپا بائبل مقدس کے اندر ایک ایسا کردار ہے، اور یہ کردار جس شخصیت کے ساتھ جڑا ہے وہ بائبل مقدس کی ایک بہت ہی مشہور شخصیت ہے۔ وہ ایک خداوند کا چنا ہوا بندہ تھا، خدا کا ممسوح تھا، بادشاہ تھا، اور اس کا نام تھا، کوئی بتا سکتا ہے؟ ساؤل بادشاہ۔ اور جس طرح آپ کو پتا ہے کہ بادشاہوں کی بہت ساری حرمیں ہوتی تھی، بیوی کے بعد کا جو درجہ ہوتا تھا وہ حرم کا درجہ ہوتا تھا، اور کئی دفعہ بادشاہ اپنی حرموں میں سے بھی اپنی نسل کو پیدا کرتے تھے، اور رسپا جو تھی وہ ساؤل بادشاہ کی حرم تھی۔ اور رسپا کی زندگی آپ کو بتاتے چلیں کہ رسپا کے اندر وفاداری
खुदावंद जिसकी वजह से उसका नाम बाइबल मुकद्दस का हिस्सा है। और खुदा ने रुस्वा पर नजर की और रुस्वा ने भी ये कहा कि खुदावंद मुझे देखता है। आइए हम दूसरा शमूएल उसका 21वां बाब और उसकी 10वीं आयत में से देखते हैं। तब यिहा की बेटी रुस्वा ने टाट लिया और फसल के शुरू से उसको अपने लिए चट्टान पर बिछाए रही, जब तक कि आसमान से उन पर बारिश ना हुई। और उसने ना तो दिन के वक्त हवा के परिंदों को और ना रात के वक्त जंगली दरिंदों को उन पर आने दिया। और दाऊद को बताया गया कि साउल की हुरमयाह की बेटी रुस्वा ने ऐसा किया। तब दाऊद ने जाकर साउल की हड्डियों और उसके बेटे यूनतन की हड्डियों को यबीस जलाद के लोगों से लिया, जो उनको बेतेशान के चौक में से चुरा लाए। और जहाँ फिलिस्तियों ने उनको जिस दिन कि उन्होंने साउल को जलजुबा में कत्ल किया टांग दिया था, सो वो साउल की हड्डियों और उसके बेटे यूनतन की हड्डियों को वहाँ से ले आया। और उन्होंने उन्हें भी और उनकी भी हड्डियाँ जमा की जो लटकाए गए थे। और उन्होंने साउल और उसके बेटे यूनतन की हड्डियों को जिला में जो बिन्यामीन की सरजमीन में है उसके बाप केस की कब्र में दफन किया। और उन्होंने जो कुछ बादशाह ने फरमाया सब पूरा किया। इसके बाद खुदा ने उस मुल्क में 12 में दुआ सुनी। और आपको बताते चले कि इस दुआ का, इस कमिटमेंट का, इस डेडिकेशन का जो आगाज है वो हुरम जो साउल की हुरम रुस्वा थी उसने किया। क्योंकि जब साउल मर गया दुश्मनों ने जो है वो उसको मार दिया, यहाँ तक कि उसको ये भी मौका ना मिला कि वो अपने लोगों में अपनी सरजमीन में दफन किया जाए। और जब फसल तैयार थी रुस्वा ने क्या किया? ना दिन देखा, ना रात देखा, ना जानवरों का खौफ, ना परिंदों का कत्ल। उसने टाट उड़ी और क्या किया? वो खुदा के हुज़ूर झुक गए। खुदा ने उसे जवाब दिया। मेरे चीज़ों कई दफ़ा हमारी ज़िंदगी में जब मुसीबतें, दुख, परेशानियां हो जाती हैं, आ जाती हैं, हम जो है वो पसीमत हो जाते हैं, हम डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, हमारा ईमान जो है वो खुदा से हम बरगश्ता हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि मेरी खुदा नहीं सुनता। बहुत सारे लोग कहते हैं खुदा ने मेरे लिए क्या किया, खुदा ने मुझे जवाब नहीं दिया। लेकिन खुदा चाहता है उसके लोग वफादारी के साथ, ध्यानदारी के साथ, मुकम्मल कमिटमेंट और ईमान के साथ उसके हुजूर झुकें ताकि उन पर बरकत आए। कई दफ़ा खुदा हमें वेट का साइन देता है। ट्रैफिक सिग्नल पर जब हम जाते हैं 3 बत्तियां होती हैं, कौन कौन सी? रेड, ग्रीन और ऑरेंज। रेड बत्ती रुक जाए, स्टॉप। कई दफ़ा खुदा भी हमें रोकता है, कहता है रुक जाए, इंतजार कर। और फिर येलो बत्ती स्टार्ट। खुदा चाहता है हम अपनी जिंदगी में न्यू स्टार्ट लें, हम अपनी जिंदगी में न्यू स्टार्ट लें। और फिर ग्रीन गो और खुदा की तरफ बढ़े, क्योंकि हमारा इंतजार कर रहा है। रुस्वा ने वफादारी दिखाई, ध्यानदारी दिखाई और उसके इस खुदा ने उसको इतनी बरकत दी कि साउल बादशाह की हड्डियाँ और उसके बेटे यूनतन की हड्डियाँ दाऊद लेकर आया और उसने लाकर उसे उसके लोगों में, उसकी बाप की कब्र में उसको दफन किया। मेरे अज़ीज़ों, जब हम वफादार रहते हैं, जब हम ध्यानदार रहते हैं, जब हम खुदा के वादों का इंतजार करते हैं, जब हम खुदा पर अपनी नजरें गाड़ी रखते हैं, तो खुदा हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम करता है। आमीन। वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, क्योंकि खुदा की नजर हम पर है। क्या है खुदा की नजर? आइए हम इसी तरह जल्दी से एक और बाइबल कैरेक्टर, जो कि बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारी खवातीन, बहुत सारे मर्द, बहुत सारे अंबिया, बहुत सारे लोग जिनको खुदा देखता रहा, खुदा की नजर उन पर थी। आज खुदा की नजर आप पर और मुझ पर है। एक और बाइबल कैरेक्टर देखेंगे जो बहुत खूबसूरत है। जी आइए, एक और बाइबल कैरेक्टर हमारे साथ है और वो हमें बताएंगी कि वो कौन है। जी सिस्टर। खुदा यीशु मसीह के जलाली नाम में आप सबको सलाम।
खुदावंद की सलामती आप सबके साथ हो। मैं वो औरत हूँ जो ऐन फेल के वक़्त पकड़ी गई। मेरी कहानी यूहन्ना 8:2-12 तक, क्योंकि खुदा की नज़र मुझ पर। आमीन आमीन। मैं और आप इस कहानी से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। इस औरत का कोई नाम यहाँ पर नहीं आया। कुछ बहुत सारी मुतज़ाद राय भी इसके बारे में पाई जाती है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि शायद ये वो औरत थी जिसका नाम जो है वो मरियम मगदलीनी था। वो खुदा में पकड़ी गई थी क्योंकि उसने यीशु मसीह के पाँव फिर आकर इधर से धोए थे और अपने बालों से उनको पोंछा था। लेकिन जब हम यूहन्ना की किताब यूहन्ना की इंजील और उसका 8वां बाब पढ़ते हैं और वहाँ पर 2 से लेकर 12 आयत तक और 12 से भी आगे ऑनवर्ड जब हम जाते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर औरत जो ज़ना में पकड़ी गई या वो औरत जो ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई, और चारों अनाजील में हम इसकी कहानी को देखते हैं। और उस वक्त कानून ये था कि अगर कोई औरत इस तरह पकड़ी जाती है तो उसको क्या किया जाए। और ये शरीयत जो है ये हुक्म अहदी अतीक से था, ठीक है। और फिर आगे यहूदी जो है उसको फॉलो करते थे। उसको क्या किया जाए, संगसार कर दिया जाए, यानी पत्थर मार, संग में पत्थर, और उसको पत्थर मार मार कर उसको क्या कर दिया जाए, जान से ही मार दिया जाए। जबकि ज़ना अकेली औरत थोड़ी कर सकती है। ज़ना करने के लिए उसे एक मर्द की भी जरूरत होती है। मर्द के लिए कोई ऐसा कानून नहीं था। दोनों को लाया गया। शायद वो भाईजान तो स्किप हो गए होंगे कहीं इधर उधर। औरत को लोग घेर कर लाए, बहुत सारे कमेंट्स कसे जा रहे थे, उसके गुनाह को उछाला जा रहा था, उसे ब्लेम किया जा रहा था, उसको बुरा भला कहा जा रहा था, तरह तरह की जुबान उसके लिए इस्तेमाल की जा रही होगी। बहुत सारी पब्लिक वहाँ पर जमा थी, लोग जो है उसको मारने को दौड़ रहे थे। और मेरे ख्याल में जो बोलने वाले जो थे वो खुद उस्ताद होंगे, लेकिन वो सबसे ज्यादा गुनहगार उसको ठहरा रहे थे। और क्या हुआ, यीशु मसीह भी वहाँ पर, यीशु को कहा जा रहा था क्या करें, उसको उजमाया जा रहा था, कहा जा रहा था उसको क्या करें। बहुत सारे लोग कह रहे होंगे, शागिर्द भी कह रहे होंगे, उस्ताद कुछ करो, बताओ उसका क्या करना है। क्या हुआ, अचानक यीशु मसीह अपनी जगह से उठे, जमीन पर बैठ गए, कुछ नहीं किया। क्या किया, क्या किया, जमीन पर क्या लिखने लगे, जिसने कोई गुनाह नहीं किया वो उसको पत्थर मारे। क्या कहा, जिसने कोई गुनाह नहीं किया वो आए और उसको पहला पत्थर मारे। और वो पहला पत्थर खुदावंद यीशु मसीह वो हस्ती थी जो उस औरत को मार सकता था, क्योंकि वही गुनाह से खाली है और उसने कभी कोई गुनाह नहीं किया और ना किया है। लेकिन उसने क्या कहा, वो आए, इसको पहला पत्थर मारे जिसने कोई गुनाह नहीं किया। और आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया, भीड़ छिटने लगी, भीड़ चली गई। मेरे जीजू, कई दफा हमारा शुमार भी पत्थर मारने वालों में होता है। हम फख्र महसूस करते हैं लोगों की गलतियों को उछाल कर, लोगों को मौजूए गुफ्तगू बनाकर। हम समझते हैं ये मेरा हक है कि मैं किसी के बारे में जो चाहे बोल सकता हूँ, बोल सकती हूँ। लेकिन जिंदगी में एक असूल अपना लीजिए कि अगर आप किसी की अच्छी बात को नहीं कर सकते, आप उसकी अच्छाई को नहीं फैला सकते, तो आपके पास कोई इख्तियार नहीं है कि आप किसी की बुराई को या उसके गुनाह को उछाले, क्योंकि आप भी गुनहगार हैं, मैं भी गुनहगार हूँ। अगर वो खालिक और मालिक जो बेगुनाह होकर हमें गले से लगाता, हमें प्यार करता है, जो हमारी खताओं को ढांप लेता है, जो हमारे गुनाहों के लिए घायल किया गया, यशायाह 53 बाब उसकी 4 और 5 आयत जो आपके सामने पढ़ी गई, वो मेरे और आपके गुनाहों के लिए घायल किया गया ताकि वो हमें अपनी रास्तबाजी का
को नुमाया करने वाले कौन हैं, जिनके पास खुद कोई इख्तियार नहीं है। हम तो खुद उसके रहम के तालिब हैं, हम तो खुद उसके फजल के तालिब हैं, हम तो खुद उसकी निजात के तालिब हैं, क्योंकि खुदा हमें, ऊंची आवाज से, क्योंकि खुदा हमें, आपको नहीं देख रहा खुदा भाइयों, आप पहले भाई बोलेंगे फिर बहन बोलेंगे, क्योंकि खुदा मुझे देखता है। वेरी गुड, प्रेज गॉड, क्योंकि खुदा मुझे देखता है, खुदा मुझे देखता है, खुदा हमें देखता है। तो आइए मेरे अजीजों, इसी ईमान के साथ अपनी जिंदगी के बकिया अयाम इस रुए जमीन पर बसर कीजिए, अपने किरदार से, अपनी गुफ्तार से, अपनी जिंदगी के एक एक अमल से हम उस मोहब्बत को, हम उस फजल को, हम उस केर को नुमाया करें जो मेरा और आपका खुदा हमसे करता है। आइए उसी मोहब्बत को लेकर दुनिया में जाएं। जो खूबियाँ, तोड़े, सलाहियतें हमारे पास हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, हम एक दूसरे के लिए दुआ तो कर सकते हैं, कुछ भी ना करें। कई दफ़ा हमारे जो है वो हमारे अल्फाज, हमारे एक्शंस दूसरों को खुदा के करीब ले जाते हैं। किसी के दुख में जाकर कुछ मत बोलें, कोई पैसे नहीं लगेंगे, जाइए। और जो है, अगर मेरी बहन सारा पस हिम्मत है, वो परेशान है, मेरे पास कुछ भी नहीं है उसके लिए करने के लिए, तो मैं सिर्फ जाकर उसे अपने गले से लगाकर कह सकती हूँ, सारा मैं आपको प्यार करती हूँ, खुदावंद आपको देखता है, बस और कुछ मत करें। और इसकी बरकत खुदा आपको देगा, इसकी बरकत खुदा आपकी कलीसिया को देगा, इसकी बरकत खुदा आपके खानदान को देगा, क्योंकि खुदा हमें देखता है। खुदावंद आप सबको बरकत देगा।